دیکھتے ہیں آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے حضرت شاہ رکن دین عالم رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی۔ بر صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن دین عالم رحمۃ اللہ علیہ کا 708واں سالانہ عرس اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی دعا سجادہ نشین وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کرائی۔ امجد ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ بر صغیر کی عظیم بزرگ حضرت شاہ رکن الدین عالم کا 708واں عرس اختتام پذیر ہو گیا۔ قومی کانفرنس کی تیسری نشست دربار کے احاطہ میں ہوئی۔ خانقاہ دارالنعمت کے سجادہ نشین طلحہ رضوی قادری، سجادہ نشین چادر والی سرکار پیر سید علی حسین شاہ، مخدوم زہیب گیلانی، وزیر مملکت ملک عامر ڈوگر، MNA مخدوم زین قریشی سمیت اہم سیاسی و مذہبی شخصیات اور عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ عرس کا ختم پاک حافظ محمد اویسی نے پڑھا اور اختتامی دعا سجادہ نشین شاہ محمود قریشی نے کرائی۔ ان کا کہنا تھا کہ درگاہ امن اور محبت کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ آنا، آپ کا سفر، آپ کی عقیدت، آپ کی محبت اور آپ نے جو عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن کے لیے 19 دسمبر کو امت مسلمہ کے وزرائے خارجہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے۔ کشمیر کے مسلمانوں پر، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم طاری کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس ظلم کی چکی سے آزادی عطا فرمائے۔ اختتامی دعا میں اقلیتی رکن قومی اسمبلی جے پرکاش لوہانا، وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ندیم قریشی، رکن صوبائی اسمبلی جاوید انصاری اور واصف راں سمیت کثیر تعداد میں زائرین شریک ہوئے۔ کیمرامین عظیم شہزاد اور ارشد گجر کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ حضرت شاہ رکن عالم کا 708واں سالانہ عرس اختتام پذیر ہو گیا۔ زائرین کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنرز اور RPO نے بھی تمام انتظامات کا جائزہ لیا۔ امجد ملک کی رپورٹ۔ بر صغیر کی عظیم بزرگ حضرت شاہ رکن الدین عالم کے 3 روزہ عرس اختتام پذیر ہو گیا۔ ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور RPO ملتان بھی شریک ہوئے اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ عرس کے دوران 1200 سے زائد پولیس اہلکاروں اور افسران نے ڈیوٹی سر انجام دی۔ زائرین کی سہولت کے لیے پولیس، واسا، ویسٹ مینجمنٹ، ریسکیو، محکمہ اوقاف سمیت دیگر محکموں کے کیمپس بھی لگائے گئے۔ الحمدللہ پہلے سے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا رش ہے، پہلے سے زیادہ ہے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے جو 2-3 سال گزرے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کا جو آنا جانا عرس مبارک بالکل نارمل ہمیں کرنا پڑا کووڈ کی وجہ سے۔ عرس میں ملک بھر سے زائرین شریک ہوئے، بچوں نے بھی خصوصی شرکت کی۔ یہاں آگے روحانی سکون ملتا ہے، یہ فیض ہر بندہ جو بھی اتنی دور سے آئے ہیں، ہر ملک پورے سے آئے ہیں لوگ کو اس امید سے ہی آتے ہیں کہ یہاں فیض ملتا ہے۔ خوشی تھا، یہ خوشی چاہیے اللہ نے میں کو دعا شامل کر شکر ہے اللہ کا، بہت بھجیاں شکر ہے گھن کے بھی کو آ گئے، دعا میں شامل تھی گئی، اللہ میں یہ مشکل حل کرے۔ زائرین نے عرس کے دوران انتظامات کو خوب سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ حضرت شاہ رکن الدین عالم کا سالانہ عرس اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ آخری روز بھی منتیں مرادیں مانگنے والوں کا سلسلہ جاری رہا۔ مزار کے باہر تبرکات کے سٹالز پر زائرین کا رش لگا رہا۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیے۔ حضرت شاہ رکن عالم کے عرس کے آخری روز بھی عقیدت مندوں کا منتیں مرادیں مانگنے کا سلسلہ جاری رہا۔ تبرکات کے سٹالز پہ زائرین کا رش لگا رہا۔ ہم ادھر دربار پہ آئے ہوئے ہیں اور سالانہ عرس کے سلسلے میں ہر سال ہی ہم یہاں پر آتے ہیں۔ یہاں پر کافی زائرین آئے ہوئے ہیں، بہت دور دور سے آتے ہیں، پورے پاکستان سے، اس کے علاوہ پوری دنیا سے بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں۔ ظاہر ہے لوگوں کے یہاں پر مرادیں یہاں سے جو بھی ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ عقیدت مندوں نے سٹال سے منتوں کے لیے دھاگے، کڑے، مالائیں اور تشبیہات خریدی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھی مزار پر آتے ہیں منت مانگے بنا نہیں جاتے۔ یہاں پر بہت سی منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس سلسلے میں ایک سٹال پر بھی موجود ہے، وہاں پر ہم نے یہ لیا جہاں پہ ہم نے جس کے منت مراد پورے ہونے کے سلسلے میں ہم یہ چیز لیتے ہیں اور دربار پر اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ سٹالز مالکان کا کہنا تھا کہ 3 روز عقیدت مندوں کا رش لگا رہتا ہے۔ ظاہرین منتیں مرادوں کے لیے تبرکات سٹال سے لے کر جاتے ہیں۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ الشفا آصف، ملتان۔ ملتان میں حضرت شاہ رکن عالم کے 708ویں سالانہ عرس کی تقریبات آخری روز بھی زائرین کے لیے 200 سے زائد جگہیں بنائی گئیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں حضرت شاہ رکن عالم کے 708ویں سالانہ عرس کی تقریبات آخری روز بھی زائرین کے لیے وسیع پیمانے پر لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ 200 سے زائد دیگیں پکائی گئیں۔ لنگر کی تیاری میں زائرین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم ادھر آتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، لنگر تیار ہوتا ہے، لنگر تقریباً جو بھی دیگیں پکتی ہیں ہر ایک کو مل جاتی ہیں، سکون سے مل جاتی ہیں، احترام سے، جو بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے، لنگر کے لیے، ہر چیز کا ادھر اہتمام کیا ہوا ہے۔
कारीगर मिठा खान का कहना था वो वालिद के साथ गुज़श्ता कई सालों से आ रहा है, सवाब की खातिर खाना पकाता है। तो छोटा दादा, अब वो भी तकरीबन 90 साल का ये ड्यूटी दे रहे थे। 90 साल की उम्र थी उसकी, तकरीबन 50 साल उसने अपनी ड्यूटी दी है सवाब खातिर अपने। बहुत उनके साथ में छोटा था, उनके साथ भी मैं ड्यूटी करता था। जायरीन का कहना था लंगर की तैयारी में हिस्सा लेकर रूहानी सुकून मिलता है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। लिया फतेहपुर में जनूबी पंजाब के मशहूर सूफी बुजुर्ग पीर सैयद मुस्तफ़ा के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। नामवर उलमा कराम ने खिताब किया। दूर दराज से आए ज़ायरीन मज़ार पर हाज़री देते रहे हैं। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट देखिए। फतेहपुर तोला शरीफ में जनूबी पंजाब के मारूफ रूहानी बुजुर्ग पीर सैयद मुस्तफ़ा शाह बुखारी के एक रोजा उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गयी। सजादा नशीन सैयद डॉक्टर शौकत हुसैन ने दरबार पर उर्स तकरीबात का आगाज किया। उसमें मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अहमद रज़ा आज़मी, कारी इशफाक गोलडवी और दीगर उलमा ने खिताब किया। उलमाए किराम का कहना था कि औलिया अल्लाह की सोहबती मार्फत का जरिया है, दरगाह अमन और मोहब्बत का दर। उसमें अकीदतमंदों और ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। छोरोका का कहना था कि औलिया अल्लाह के मज़ार सुकून का जरिया है। हम तमाम दोस्त इस दरबार पे फैज याब होने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कीदो एहतराम से तमाम ज़ायरीन और मुरीद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्त हाजिर हुए हैं। मुर्शिद दा आज पहला और तुसा बाकी तो देखी दोस्त मुरीदैन को देखी दोस्त ये नहीं कि बस सेब के अंदर ये लोग तो शामिल थे बल्कि पूरे पाकिस्तान। उर्स की तकरीब में साबिक डीजी हेल्थ डॉक्टर मुख्तार हुसैन सैयद, एमपीए अहमद अली औलख, साबिक एमपीए कैसर खान भी शरीक हुए। तकरीब के आखिर में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही लिया। खानेवाल के सूबाई हल्का पीपी 206 में ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की यूसी 102 में कॉर्नर मीटिंग हुई। लीगी उम्मीदवार राना सलीम कहते हैं कि हल्के के अवाम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। अवाम हुकूमत की पॉलिसियों से तंग आ चुके। खानेवाल सूबाई हल्का 206 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। हल्के में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलीम की रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हल्के के अवाम मुस्लिम लीग नून को ही वोट देंगे। अवाम हुकूमत की पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। आज आम आदमी इनकी पॉलिसियों से बहुत तंग आ गया है। खाद के लिए जनूबी पंजाब का किसान भी रुल गया है। 16 दिसंबर को शेर ही जीतेगा। अब बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। गर्म पानी से नहाना गरीब आवाम के लिए अब ख्वाब ही रह गया है, क्योंकि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल गीजर की कीमत में 2,500 से 3,500 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफा होने के साथ साथ नाकिस लोकल गीजरों की शिकायत भी बढ़ने लगी है। इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट देखिए। सर्दियों में गीजर हर घर की जरूरत है। दीगर एशिया की तरह गीजर भी आवाम की पहुंच से दूर। गुज़िश्ता साल की निस्बत गीजर की कीमत में 2,500 से 3,500 रुपए का इजाफा हो गया है। 6 लीटर गैस के गीजर की कीमत 8,000 से बढ़कर 11,000 रुपए, 8 लीटर गैस के गीजर की कीमत 10,000 से बढ़कर 13,000 रुपए, 10 लीटर इलेक्ट्रिक इंस्टेंट गीजर की कीमत 11,000 से बढ़कर 14,500 रुपए, 15 लीटर इलेक्ट्रिक गीजर की कीमत 13,500 से बढ़कर 17,000 रुपए हो गई है। आजकल महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। आप देख रहे हैं कि लोकल गीजर सस्ता हो गया है और ओरिजिनल गीजर महंगा है कि आवाम ले नहीं सकती। कीमतों में इजाफा होने के साथ नाकिस लोकल गीजरों की शिकायत भी बढ़ने लगी है। ताजिरों का कहना है कि लोकल गीजरों में कम मयार की चीजें इस्तेमाल होती हैं, इसलिए हर वक्त इनसे नुकसान होने का खतरा रहता है। लोगों के पास पैसे नहीं है, क्या करें बेचारे लोग मजलूम हुए हैं। इस वक्त वो मजबूर है कि बच्चों को नहलाना गर्म पानी से या वजू करना, इसके अलावा कोई भी किसी पे कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी क्या करें, ये या बाल्टी में गर्म करते हैं या ये लेते हैं, ये एक 6 महीने बाद खत्म हो जाता है। ताजिरों का मजीद कहना था कि ब्रांडेड गीजर की कीमतें गरीब आवाम की पहुंच से बाहर है, जबकि लोकल गीजरों का मयार कम होता है और आवाम भी इनसे तंग है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। खान के बासियों ने सर्दी बढ़ते ही लंडा बाजार का रुख कर लिया है। छुट्टी के रोज गर्म कपड़े खरीदने में मसरूफ दिखाई दिए। आसिर इशफाक की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में सर्दियों में इजाफा होते ही शहरियों ने किया लंडा बाजार का रुख। सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े, जर्सियां और स्वेटर खरीदने में मसरूफ दिखाई दिए। लंडे में थोड़ा रेट सही मिल जाता है, ये इधर से गुजारा करते हैं सब लोग। अभी देखे आप लोग भी देख रहे हैं, सब इतनी आवाम आई हुई है, खरीदारी कर रही है, सारा कुछ कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, आप कुछ करें सी गरीब के लिए, महंगाई थोड़ी कम कर दे तो अच्छी होगी। शहरियों का कहना था कि सब कुछ महंगाई की नजर हो गया। लंडा बाजार किसी नेमत से कम नहीं, यहाँ से गर्म कपड़े मुनासिब कीमत पर मिल जाते हैं। थोड़ा सा बाजार से ज्यादा नहीं है फर्क,
तो वैसे ही ये सही रूटीन पे चल रहे हैं। अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बाजार से तो रेट में से कम होता है तो इधर आते हैं ना। शहरियों का मजीद कहना था कि महंगाई के बायस बाजारों में खरीदारी करना मुमकिन नहीं। गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार ही बेहतरीन जगह है। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अदीबों का पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी लांगे खान बाग का दौरा। कहते हैं लाइब्रेरी को हुकूमती तवज्जो की अशद जरूरत है। 160 साल से लाइब्रेरी को अपनी मदद के तहत चलाया जा रहा है। अब हुकूमत उनकी मदद करे। सुहेब गुरबानी की रिपोर्ट देखिए। दयाल सिंह लाइब्रेरी लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के बाद पब्लिक लाइब्रेरी लांगे खान पाकिस्तान की तीसरी बड़ी लाइब्रेरी है। इसमें पुराने अखबारात, पुरानी तसानीफ, हाथ से लिखे कुरान मजीद और लाखों किताबें मौजूद हैं। पहचान के लिए किताबों पर सफेद लेबल भी लगाया गया है। 100 साल पुरानी किताबें यहाँ पढ़ी हैं और कुरान पाक के नुस्खे देखकर जो मेरी अकीदत और मेरे दिल में उसका मोहब्बत का इजहार हुआ है वो मैं अल्फाज में बयान नहीं करता। मैं तो बल्कि आवाम को भी और मुल्तान के तमाम शहरियों से इल्तमास करता हूँ कि वो पब्लिक लाइब्रेरी का, यहाँ लांगे खां वाली लाइब्रेरी का विजिट करें। अदीबों का कहना था कि लाइब्रेरी को हुकूमती तवज्जो की जरूरत है। 160 साल से लाइब्रेरी को अपनी मदद आपके तहत चलाया जा रहा है। अवाम ने अपने जाती खर्चे पर इसको जिंदा रखा हुआ है। आज 160 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट नहीं दी गई। मेरी एक अपील है कि कारपोरेशन जो है वो और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 10-10 लाख रुपए साल का दें तो ये जिंदा रहेगी। 1849 में कायम होने वाली लाइब्रेरी के दरो दीवार तो अब भी सलामत हैं, लेकिन किताबों को जिंदा रखना भी जरूरी है। अदीबों ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। महकमा PND पंजाब चोलिस्तान में होने वाले तरक्याती कामों की तकमील में सुस्ती पर नाखुश है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को जल्द मंसूबा मुकम्मल करने के लिए खत लिख दिया गया है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब चोलिस्तान में तरक्याती मंसूबों की फौरी तकमील चाहता है। इस मकसद के लिए डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को खत लिख दिया गया है, जिसमें ताकीद की गई है कि मंसूबों की वक्त पर तकमील के लिए काम की रफ्तार तेज की जाए। क्रिसमस की आमद है। चर्च ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदों का पादरी डॉक्टर अजीम आमिर की सरबराही में मिंचनाबाद का दौरा। मसीही बरादरी के गरीब खानदानों में राशन तकसीम करने के साथ साथ बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए गए। वतनी अजीज की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआया तकरीब भी मुनाकिद की गई। देखते हैं शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम की ये खुसूसी रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह मिंचनाबाद में भी क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। इस हवाले से चर्च ऑफ पाकिस्तान के वफद ने पादरी डॉक्टर अजीम आमिर की सरबराही में मिंचनाबाद का दौरा किया, जहां वफद ने मसीही बरादरी के गरीब खानदानों, बेवा खवातीन में राशन तकसीम किया। बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए गए। डॉक्टर अजीम आमिर का कहना था कि क्रिसमस पर मसीह की मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। तमाम मसीही बरादरी को हमने बच्चों में गिफ्ट बांटे हैं, बेवाओं में राशन तकसीम किया है और मसीह की मोहब्बत को जो अमन का शहजादा बनकर इस दुनिया में आया है इन सब के साथ बांटा है। क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए पूरा महीना तैयारियां की जाती हैं। क्रिसमस ट्री की सजावट को भी खास अहमियत दी जाती है। मिसिस सरवत अजीम आमिर का कहना था कि सबको क्रिसमस की खुशियों में शामिल करने के लिए राशन और तोहफे तकसीम कर रहे हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जब ये दिसंबर की खुशियां शुरू हुई हैं, दिसंबर का महीना शुरू हुआ है, हम जगह ब जगह जाकर खुदावंद की मोहब्बत को एक दूसरे में बांट रहे हैं। मसीही बरादरी ने इस मौके पर वतन अजीज की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की ताकि मिल बैठ कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। मिंचनाबाद की मसीही बरादरी ने चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से राशन और तोहफे मिलने पर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन टीम के हमरा शेख गुलाम मुस्तफा नदीम, रोही, मिंचनाबाद। मुल्तान में खाबों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर है। मटका चाय, मटका बिरयानी के बाद मटका पिज्जा ने धूम मचा दी है। मुनफरद जायके और म्यार के बायस सभी अनोखे पिज्जे के दीवाने हैं। तफसीलात देखिए माजिद क्लास्ट्रा की इस रिपोर्ट में। रोजमर्रा जिंदगी में आपने पिज्जे तो बहुत से खाए होंगे, लेकिन जो हम आज आपको पिज्जा दिखाने वाले हैं ये दूसरे पिज्जों से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये कौन सा पिज्जा है, कैसे तैयार होता है, आइए चल के आपको दिखाते हैं। बहुत खा लिया पैन पिज्जा, अब बारी है मिट्टी के बर्तन में तैयार किए जाने वाले मटके पिज्जे की। चिकन अचारी पिज्जा, बारबेक्यू पिज्जा, वेजिटेबल पिज्जा, यहाँ सब मिलता है। देसी स्टाइल से तैयार इस मुनफरद पिज्जे ने मुल्तानियों की तवज्जो हासिल कर रखी है। शहरी कहते हैं कि यूं तो पिज्जों की बहुत ज्यादा वैरायटी है, लेकिन मटका पिज्जा सबसे मुनफरद है, इसीलिए वो बहुत दूर से खाने आए हैं। बहुत दिनों से सुन रहे थे, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ये पिज्जा है। दोस्त अहबाब खाने के लिए आते थे
تو ہم نے بھی سنا تھا، تو اس لیے ہم بھی کھانے کے لیے ماشاءاللہ بہت معیاری اور بہت لذیذ بنا ہوا ہے ماشاءاللہ مٹکا پیزا۔ میدے سے تیار نان پر 12 مثالوں کا تڑکا لگا کر چکن شامل کیا جاتا ہے، پھر کشمیری مرچ، ادرک اور چیز لگانے کے بعد اسے 20 سے 25 منٹ تک پکایا جاتا ہے اور پھر تیار ہو جاتا ہے گرم گرم مٹکا پیزا۔ اس میں ہم چکن یوز کر رہے ہیں، اس میں چیز یوز کر رہے ہیں، اس میں مسالہ جات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو یہ ڈیفرنٹ چیز ہم دے رہے ہیں، تو لوگ جو ہے جوک دب جو کہ یہاں پر آ رہے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ مٹکا پیزا ذائقے کے اعتبار سے پین پیزے سے منفرد ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے چمچ سے کھایا جاتا ہے۔ دسمبر کی سرد راتوں میں گرم گرم مٹکا شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کیمرہ مین سفیر حیدر کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ روہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔